اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر المعروف من غیر ربیہ الخالق من غیر ربیہ الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا وجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو وجاج ولا عرض ذات نهاد ولا خلق ذو تماد ذلك مبتدئ الخلق ووارثه وإله الخلق ورازقه الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر البهر الزاخر المنصور المؤيد الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبر وشبر قاسم طوبہ والسقر الاشجع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطة دائرة المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء النجباء بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وتشریفہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ صلوات پڑھیں معزز سامعین کرام عزاداران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام بہت طولانی گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے، چند باتیں بس آپ کی خدمت میں عرض کرنا، اس کے بعد بھی مجلس سے میرے شان بھائی کا حکم ہوا تو میں حاضر ہوا آپ کی خدمت میں، بس جلدی جلدی دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ انشاءاللہ متوجہ ہیں اور آخر تک متوجہ رہیں گے۔ ارشاد ہوا کہ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ تمام حمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے ہے۔ حمد اللہ کے لیے ہے اور سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے سلام کیا جائے گا تو وہ اس بات کا اہل ہوگا کہ وہ اللہ کا چنا ہوا ہے، وہ اللہ کا چنا ہوا ہے۔ دیکھیے ہماری نظر والا لائق سلام اور ہوتا ہے، خدا کی نظر والا لائق سلام اور ہوتا ہے۔ ہم تو جسے دیکھتے ہیں کہ جس کی پیشانی پہ ڈھٹا ہے وہ لائق سلام، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا نظر آئے وہ لائق سلام، جو مسجدوں کے دروازے سے مسجد کی دہلیز چوم کے گزرنے والا ہو وہ بھی لائق سلام۔ لیکن ہماری نظر والا لائق سلام اور ہے، اللہ کی نظر والا اور ہے۔ اب اللہ کی نظر میں لائق سلام کون ہے تو خود قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے میرے حبیب جب آپ کے پاس کوئی ایسا بشر آئے کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہو تو اسے آپ سلام کیجئے گا۔ تھوڑا آپ ساتھ دیتے رہیں انشاءاللہ لطف آئے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے بھائی یہ قرآن ہے، اسے تو ضعیف کہہ کے ہٹایا نہیں جا سکتا ہے نا، ہاں اسے تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ آیت صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، راوی غلط ہے، نہیں راوی بھی روح الامین ہے۔ کوئی یہاں تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر قرآن کے بارے میں آپ نے ذرا بھی شک کیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں حال کیا ہوتا ہے۔ غور کیجئے گا تو قرآن کے بارے میں شک
कोई नहीं कर सकता है, ये कुरान है। इरशाद हुआ जब आपके पास कोई ऐसा बशर आए जो हमारी आयतों पर ईमान रखता हो तो उसे मेरे हबीब आप सलाम कीजिएगा, आप सलाम कीजिएगा। अब मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इन आयतों से मुराद कौन है, ये कौन वाली आयतें हैं कि जिस पर ईमान रखने वाला लायक सलाम है। तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये वो आयतें नहीं हैं जिनकी तिलावत की जाती है, कहा ये उन आयतों की बात हो रही है जिनकी ज़ियारत की जाती है। करबला जाके, नजफ जाके, सामर्रा जाके, मशहद जाके, कुम जाके, जन्नतुल बकी जाके जिनकी ज़ियारत करते हैं, ये उन आयतों की बातें हो रही। इसका मतलब ये है कि अल्लाह बंद बंद लफ्ज़ों में कह रहा है मेरे हबीब हर एक को सलाम न कीजिएगा, जब आपके पास कोई अहले बैत का मानने वाला है तो उसे सलाम कीजिएगा। अच्छा, और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए। कुरान है, मैं आपको आयत ही सुना रहा हूँ। इरशाद हुआ कि सलामुन अला इब्राहिम, ए इब्राहिम आप पर सलाम हो। सलामुन अला नूह, ए नूह आप पर सलाम हो। सलामुन अला मूसा व हारून, ए मूसा, और ये सब आयतें सुना रहा हूँ। मूसा और हारून आप पे सलाम हो। अच्छा, आपने मुलाहिजा किया, मैंने 3 आयतें आपको सुनाई है, आपने मुलाहिजा किया कि इसमें क्या है, का सलाम किसे सलाम है, का इब्राहिम को सलाम, मूसा को सलाम, हारून को सलाम, और कीजिएगा, और नूह को सलाम। इन आयात में अल्लाह ने इनको सलाम किया, मगर मैं अब यहीं पर रुकूंगा नहीं, एक आयत और सुनाऊंगा। नूह को अल्लाह ने सलाम किया, इब्राहिम को अल्लाह ने सलाम किया, मूसा और हारून को अल्लाह ने सलाम किया। एक आयत और सुना रहा हूँ। इरशाद हुआ सलामुन अला इलियासीन, ए आले यासीन आप पे सलाम हो। सुनिएगा, ये आयत है, आयत, ए आले यासीन आप पे सलाम हो, ए आले यासीन आप पे सलाम हो। आपने अब ये 4 आयतें सलाम की सुनी, आपने मुलाहिजा किया, फ़र्क देखा कि अल्लाह ने जब नूह को सलाम किया तो सिर्फ नूह को सलाम किया, ज़ुर्रियत नूह को सलाम नहीं किया। अल्लाह ने जब मूसा और हारून को सलाम किया तो सिर्फ मूसा और हारून को सलाम किया, फर्जंदान मूसा और हारून को सलाम नहीं किया। अल्लाह ने जब इब्राहिम को सलाम किया तो सिर्फ इब्राहिम को सलाम किया, औलाद इब्राहिम को सलाम नहीं किया। लेकिन जब यासीन की बात आई तो अल्लाह ने ये नहीं कहा यासीन आप पे सलाम हो, कहा आले यासीन आप पे सलाम हो। अब आले यासीन कौन है, ये कौन बताए? अगर हम कुछ बोलेंगे तो लोग कहेंगे अकीदत है, अगर आप लब खोलेंगे तो लोग कहेंगे मोहब्बत है, लेकिन अगर इब्ने हजर मक्की सवा के मुहर्रका में लिख दे तो सब कहेंगे हकीकत है। और कीजिएगा, उन्होंने लिखा कि आले यासीन से मुराद कोई और नहीं है, आले यासीन से मुराद कोई और नहीं है। जिन्हें कुरान की ज़बान में आले यासीन कहते हैं उन्हीं को नबी की ज़बान में अहले बैत कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने अहले बैत को सलाम किया। अब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, इसीलिए मैंने इस उन्वान का इंतखाब किया है कि साहिबान ज़ौक़ बैठे हुए हैं। गौर कीजिएगा, अगर बुजुर्ग मेरे साथ रहेंगे और बोलेंगे हौसला अफजाई हो जाएगी। मैं पढ़ता इनके लिए नहीं हूँ, ये जब हाथ उठा देते हैं तो तायीद हो जाती है, हौसला बढ़ जाता है कि हाँ बात मेरी पहुँच रही है। मैं तवज्जो खुसूसी अपने हमसिन और कमसिन भाइयों की चाहता हूँ। गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों, तो सलाम अल्लाह ने इस आयत में करवाया नहीं है, इस आयत में अल्लाह ने सलाम किया है। इस आयत में अहले बैत को सलाम करने का हुक्म नहीं दिया है, खुद सलाम किया है। हर एक के लिए 2 बातें होती हैं, या उसका हुक्म होता है या उसका फेल होता है। हुक्म ऑर्डर को कहेंगे, फेल कोई काम खुद किया जाए। किसी बच्चे से मैं कहूँ पानी ले आओ, ये कहलाएगा हुक्म। गौर कीजिएगा, वही गिलास उठा के हम खुद पी लें, ये कहलाएगा फेल। तो जो काम खुद किया जाए वो फेल है, और जिस बात का ऑर्डर दिया जाए वो हुक्म है। अब अल्लाह के लिए भी एक अल्लाह का फेल है और एक अल्लाह का हुक्म है। का क्या मतलब है? का अकीमुस सलात, नमाज पढ़ो, ये अल्लाह का हुक्म है। गौर नहीं फरमा रहे आप, ये अल्लाह का हुक्म है। रोज़ा रखो, ये अल्लाह का हुक्म है। हज करो, ये अल्लाह का हुक्म है। नमाज बंदे पढ़ेंगे, अल्लाह नहीं पढ़ता। रोजे बंदे रखेंगे, अल्लाह नहीं रखता। हज बंदे करेंगे, अल्लाह नहीं करता। ये है चूंकि हुक्म इलाही, तो हुक्म इलाही है तो बंदे करेंगे, अल्लाह नहीं।
لیکن جب اہل بیت کو سلام کی بات آتی ہے تو خالی بندے نہیں کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ بھی سلام کرتا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ تو یہ ہے فعل خدا۔ تو نماز ہے حکم خدا اور اہل بیت کو سلام ہے فعل خدا، اور اللہ کی ان دونوں باتوں پر ہم علی والوں کے علاوہ کوئی عمل ہی نہیں کرتا ہے، صرف اور صرف ہم علی والے ہی عمل کرتے ہیں، چونکہ نماز ہے حکم خدا، سلام ہے فعل خدا، ان دونوں باتوں پر ہم علی والے ہی عمل کرتے ہیں۔ کا کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہم حکم خدا بھی مانتے ہیں اور اہل اللہ کے فعل کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ارے نہ یقین ہو تو آپ کسی مسجد میں جھانک کے دیکھ لیجئے گا، حکم خدا ہے نماز، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، فعل خدا ہے اہل بیت کو سلام، ہم بعد نماز السلام علیکہ یا ابا عبداللہ بھی کہتے ہیں۔ ایک نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، مجھے خاص منزل تک آنا ہے، خصوصی توجہ چاہتا ہوں، خاص منزل تک آنا ہے، تو ہم دونوں پہ عمل کرتے ہیں۔ نماز پڑھی حکم خدا، سلام کیا فعل خدا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب سلام کیا، آپس میں بھی تو ہم لوگ سلام کرتے ہیں، آپس میں بھی ہم لوگ سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں سلام علیکم، کیا مطلب ہے؟ زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ ادھر سے جواب ملا علیکہ السلام، آپ بھی زندہ رہیں، آپ بھی سلامت رہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ادھر سے میں نے زندگی کی دعا دی، پلٹ کے آپ نے زندگی کی دعا دی، لیکن جس نے پہلے زندگی کی دعا دی وہ ہے مستحب، مگر بعد والے پر واجب ہے کہ زندگی کی دعا دے۔ تھوڑا ساتھ رہیے گا، تھوڑا ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ بعد والے پر واجب ہے زندگی کی دعا دے، سلام ہے مستحب، جواب سلام ہے واجب۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو اب آپ دیکھیں زندگی کی دعا ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو زندگی کی دعا دے رہے ہیں، اس کا مطلب سلام کا مطلب ہے، سلام کا معنی ہے، سلام کی میننگ ہے کہ زندہ رہیے، سلامت رہیے، جینے کی دعا، جینے کی دعا، یہ ہے سلام کا مطلب، زندگی کی دعا دی جا رہی ہے، یہ ہے سلام کا مطلب۔ اب ہم آپ اور ہم آپس میں جو سلام کرتے ہیں یہ ہے زندگی کی دعائیں، لیکن ہر نماز کے بعد ہم آقا حسین کو بھی تو سلام کرتے ہیں۔ غور کیجئے گا، ہر نماز کے بعد ہم آقا حسین کو بھی سلام کرتے ہیں، تو ہم جو آقا کو سلام کرتے ہیں یہ ان کے لیے زندہ رہنے کی دعا نہیں ہے، یہ تو ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر تھوڑا سا رہیے گا، ہم جو آقا کو سلام کرتے ہیں یہ ان کے لیے دعا نہیں ہے، یہ تو ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے، لیکن ادھر سے جو جواب آتا ہے وہ ہمارے لیے دعا ہے۔ ارے 1400 سال سے پوری دنیا اسی فکر میں تو مری جا رہی ہے کہ ان عزاداروں کو ہر جلوس میں مارا جاتا ہے، ہر مجلس میں مارا جاتا ہے، دنیا میں ہر کونے کونے میں مارا جاتا ہے، یہ مرتے کیوں نہیں ہے؟ ارے ہم کیسے مرے جسے روزانہ جینے کی دعا ہے حسین دے رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ جسے روزانہ جینے کی دعائیں حسین دے، اسے کون مار سکتا ہے؟ اب جملہ حوالے کر رہا ہوں، اہل ذوق بیٹھے ہوئے ہیں، جملہ حوالے کر رہا ہوں آہستہ سے۔ شیعہ قوم بڑی خوددار قوم ہے، اس نے کسی غیر کا احسان ہی نہیں لیا۔ ارے ماں زہرا کی دعا سے پیدا ہوئی، بیٹے حسین کی دعا سے زندہ ہے۔ ایک صلوات کو بڑے محمد مجھے غیر کا احسان ہی نہیں لیا اس نے۔ اور کر رہے ہیں تو یہ سلام، سلام اب سنیے گا، تو سلام، زیارتیں جتنی ہیں یہ سب، یہ زیارتیں، ان کو آپ پڑھیں تو ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں، اس میں وہ فضائل موجود ہیں جن کا آج دنیا انکار کر رہی ہے۔ ہاں انکار کر رہی جن کا دنیا، مردے جلانا، رزق کا بانٹنا، سب زیارتوں میں موجود ہے۔ وہاں جا کے عربی میں خود پڑھ کے آتے ہیں، یہاں اردو میں بتا دیتے ہیں تو انکار کر دیتے ہیں۔ ہاں غور کر رہے ہیں آپ؟
वहाँ जाके खुद पढ़ के आते हैं, यहाँ इनकार कर रहे हैं। सारे फ़ज़ाइल ज़ियारतों में मौजूद है। ज़ियारत शुहदाए करबला, मैं सामने की ज़ियारत है जो आप हर शब जुमा पढ़ते हैं उनके हवाले दे रहा हूँ। ज़ियारत शुहदाए करबला जो तमाम शहीदों की एक ज़ियारत है। जनाब हबीब, ज़ुहैर, सईद, आबिस शाकिरी, इन तमाम शहीदों की जो एक ज़ियारत है। इरशाद हुआ, अस्सलामु अलैकुम या अस्फिया अल्लाह, आए अल्लाह के चुने हुओं आप पर सलाम। किसे सलाम किया? हबीब को, ज़ुहैर को, सईद को, आबिस शाकिरी को, हुर को, जौन को, हुर के बेटे को, हुर के गुलाम को। क्या कह के सलाम किया? अल्लाह के चुने हुओं आप पर सलाम। अल्लाह कैसों को चुनता है? का आदम को चुना, नूह को चुना, इब्राहिम को चुना, मूसा को चुना, ईसा को चुना। गौर कर रहे हैं आप? अल्लाह ने नबियों को चुना। तो नबियों को क्यों चुना? का अल्लाह ने नबियों को चुना नबूवत के लिए। इसका मतलब यह है कि कोई नबी नहीं बनता जब तक अल्लाह ना चुने। तो जैसे कोई नबी नहीं बनता जब तक अल्लाह ना चुने, वैसे ही कोई नासिर हुसैन नासिर नहीं बनता जब तक अल्लाह ना चुने। अल्लाह अकबर। भाई इनको अल्लाह ने चुना है, इनको अल्लाह ने चुना है। जो करबला के शहीद हैं अल्लाह ने चुना है इनको। ये सब नासिर हुसैन है। नासिर मर्जी से नहीं बनता है, अल्लाह चुनता है तो नासिर बनते हैं। गौर कीजिएगा। अब नुसरत खाली कल्पा तमाम नहीं हुई, हलमिन का नारा आज भी फिजा में गूंज रहा है। तो नासिरों की जरूरत है आज भी। और नासिरों का खासा यह है कि अल्लाह चुनेगा तो नासिर बनेगा। तो भाई आज जब हलमिन का नारा है तो नासिर भी होंगे। का जाहिर है नासिर मौजूद है, तो कहाँ है, कहाँ ढूंढे, कहाँ तलाश करें? कि अगर आज के नासिरों को ढूंढना है तो दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। का फिर का माइक लीजिएगा और ऐलान कीजिएगा मजलिस होने जा रही है, ये नासिर इकट्ठा हो जाएंगे। हाँ हाँ, कोई इसे खिताबत कह के साइड न लगा दे, इसलिए मैं रवायत का भी सहारा ले रहा हूँ। हाँ, 8वें इमाम की रवायत है, 8वें इमाम की हदीस है कि जो हमारा जिक्र सुने और करे वो हमारा नासिर है। जो हमारा जिक्र करे और सुने वो हमारा नासिर। तो आप सब हैं नासिर। कल वाले नासिरों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उनके हम पल्ला कोई नहीं हो सकता, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, मगर नासिर आप भी हैं। मुतवज्जे रहिएगा, शायद कोई खास बात हो। नासिर आप भी हैं। नासिरों का खासा ये है कि अल्लाह चुनेगा तो नासिर बनेगा। अब आज के बाद जब भी फर्श अज़ा पे बैठिएगा तो खुश ना होइएगा कि आप अपनी मर्जी से आए हैं, बल्कि फख्र कीजिएगा अल्लाह ने चुना है। अल्लाहु अकबर। गौर कीजिएगा। तो भाई नासिर अल्लाह चुनेगा, नासिरों का खासा है अल्लाह चुनेगा। अब देखिए कल वालों नासिर वो और थे, आज के नासिर और है। कल की नुसरत और थी, आज की नुसरत और है। भाई कल लोग हुसैन की जान के पीछे पड़े थे, तो कल के नासिरों पर लाजिम था कि हुसैन पर जान दे दी जाए। कल लोग हुसैन की जान के पीछे खुसूसी तवज्जो, कल लोग हुसैन की जान के पीछे पड़े थे, तो कल के नासिरों पर लाजिम था कि हुसैन पर जान दे दी जाए। उधर से तीर चले, इधर से जिस्म बढ़े, उधर से नेज़े चले, इधर से सीने बढ़े, उधर से तलवारें चले, इधर से गले बढ़े। तो भाई कल के नासिरों पर लाजिम था कि हुसैन पर जान दे दी जाए। आज के नासिरों पर क्या जरूरी है? चूंकि कल हुसैन की जान के पीछे लोग पड़े थे, तो कल जरूरी था जान देना। आज लोग हुसैन की आजादारी के पीछे पड़े हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले। आज़ादारी के पीछे पड़े, तो आज के नासिरों पे लाजिम है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादारी की जाए। अलम सजा आज की नुसरत, ताज़िया बनाना आज की नुसरत, फर्श अज़ा पे आना आज की नुसरत, मजलिसें करना आज की नुसरत, शब्बेदारियों में जाना आज की नुसरत, जुलूसों में आना आज की नुसरत, गहवारा सजाना आज की नुसरत, सबीरे बनाना आज की नुसरत, तबर्रुक बांटना आज की नुसरत। तो कल की नुसरत थी जान देना,
आज की नुसरत है आज़ादारी करना, कल की नुसरत थी जान देना, आज की नुसरत है आज़ादारी करना। तो चूंकि नुसरत में फ़र्क है इसलिए नाम भी अलग अलग रखे गए। कल के नासिरों को अंसार कहा गया, आज के नासिरों को आज़ादार कहा गया। एक सलावत पढ़े मोहम्मद कल के नासिर अंसार कहलाए, आज के नासिर आज़ादार कहलाए। तो अल्लाह नासिरों को चुनता है तो नासिर बनता है। ये मैं ज़ियारत सलाम सुना रहा हूँ आपको, हाँ वो हवाले दे रहा हूँ जो इनकार ही नहीं कर पाएंगे, वरना फिर एक एक मस्जिद जाना पड़ेगा और सब ज़ियारतें निकालना पड़ेंगी। हाँ मस्जिद में आप जानते हैं लखनऊ में कितनी मस्जिदें हैं, हाँ बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। हाँ तो वो हवाले दे रहा हूँ जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। आप सुनिएगा, यही ज़ियारत शुहदाए करबला। अगला फिक्रा इरशाद हुआ सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, ऐ दीन के नासिरों आप पर सलाम। किसे सलाम किया अभी बताया था, हबीब, ज़ुहैर, सईद, आबिस, शाकिरी, हुर का बेटा गुलाम, जौन, इन तमाम शहीदों को सलाम कर रहे हैं। क्या कह के? दीन के नासिरों आप पर सलाम। आपसे सवाल है, हबीब ने किस पर जान दी? थोड़ा साथ रहिएगा खुदा के लिए। का हुसैन पर। ज़ुहैर ने किस पर जान दी? का हुसैन पर। सईद ने किस पर जान दी? का हुसैन पर। आपने सलाम कैसे किया? का सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, जान दे रहे हैं हुसैन पर। आप इस फिक्रे में कह रहे हैं दीन के नासिर, यहीं पर रोकूंगा फिर यहीं आऊंगा। इमाम मासूम से पूछा गया मौला आपके दादा अली का नाम कुरान में है? कहाँ है? का क्या नाम है? कहे जो कुरान में लफ्ज़ ईमान आया है ये मेरे दादा अली का नाम है। हाँ 500 से ज़्यादा मेरे पास ऐसी आयतें हैं जिसमें ज़िक्र अहले बैत है। हाँ और बुजुर्ग उलमा के पास जाएंगे, ये तो मुझ जैसे अनपढ़ की बात हो रही, उलमा के पास जाएंगे तो हज़ारों आयतें होंगी। हाँ सुनिएगा, क्या कहा? दादा का नाम है? कहाँ? तो क्या नाम है? कहे जो कुरान में लफ्ज़ ईमान आया है ये मेरे दादा अली का नाम है। तो जैसे हैदर अली का नाम है, अली का नाम है, वैसे ही ईमान भी अली का नाम है। ईमान भी अली का नाम है। तो अली का दूसरा नाम क्या है? ईमान। अब फिर आइए ज़ियारत की तरफ। अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, ऐ दीन के नासिरों आप पर सलाम है। जान दे रहे हैं हुसैन पर, आप कह रहे हैं दीन के नासिर। तो मानना पड़ेगा जैसे अली का दूसरा नाम ईमान है वैसे ही हुसैन का दूसरा नाम दीन है। मानना पड़ेगा जैसे अली का दूसरा नाम ईमान वैसे ही हुसैन का दूसरा नाम दीन है। और अगर कोई हुसैन को दीन नहीं मानता है तो मेरा गिरेबान पकड़ने से पहले अजमेर जाके ये मिसरे मिटवाए, शाहस्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन, तो हुसैन हुसैन दीन, अली ईमान, बाप ईमान, बेटा दीन, बाप ईमान, बेटा दीन। तो फिर मैं भी जुमला कहूँ, अगर किसी ने बेटे को छोड़ा तो बेदीन कहलाएगा, बाप को छोड़ा तो बेईमान कहलाएगा। इसका मतलब ये है अली अली भी जरूरी है, हुसैन हुसैन भी जरूरी है।
हाँ, और कौन है जो नहीं मानता है हुसैन को दीन? अगर हुसैन को दीन नहीं मानते हैं, मैं अपनों से बातें कर रहा हूँ, हुसैन को दीन नहीं मानते तो किस में दम है जो कह दे हुर कल तक दीदार था? इतने लोगों में कोई कह सकता है कि कल तक हुर दीदार था? कोई नहीं कह सकता। तो क्या नमाजें नहीं थी, रोजे नहीं थे, कारी नहीं थे, हाजी नहीं थे? का सब था तो दीदार क्यों नहीं? का सब था, दीन ही नहीं था। इधर आका हुसैन के कदमों से आके लिपट गए। अब कौन है जो हुर का नाम अलैहि सलाम के बगैर ले ले? और कर रहे हैं तो हुसैन दीन है, हुसैन दीन है, और कर रहा है हुसैन दीन। तो ये सलाम और अल्लाह, मैं बात कर रहा हूँ सलाम और चुने हुओं की। तो अल्लाह जिन्हें चुनता है उन्हें सिर्फ लायके सलाम नहीं बनाता है, उन्हें अख्तियारात भी देता है अल्लाह। मैंने जिस आयत को उन्वान बनाया उसमें यही दो बातें हैं जिस पे मुझे बात करना थी। एक ये कि लायके सलाम, और दूसरे ये कि चुने हुओं को अल्लाह अख्तियार देता है। तो आइम्मा को अल्लाह ने बहुत सारे अख्तियारात, बहुत सारे अख्तियार दिए। मुर्दा जिलाना, सूरज पलटाना, सितारा बुलाना, ये सारे अख्तियारात अहले बैत के हैं। और ये अख्तियारात, इस पर ताज्जुब ना कीजिएगा, बहुत छोटे छोटे हैं, ये कोई बहुत बड़े अख्तियार नहीं। हाँ, ये अख्तियारात उनकी अजमत के हिसाब के नहीं हैं, ये अख्तियारात हमारी अक्ल वाले हैं। हाँ, उन्होंने जो ये अख्तियारात दिखाए हैं ये वो वाले दिखाए हैं जिसे हमारी अक्लें कबूल कर ले। वरना वो अगर अपनी अजमत वाले दिखाने लगे तो फिर यहाँ सब शिया नहीं बैठे होते, नुसैरी बैठे होते हैं। और कर रहे हैं। हाँ, तो ये अख्तियारात। और मैं अक्सर मजलिस में ज़ीशान भाई ये जुमला कहता हूँ कि ये जितने खुतबा उलमा ज़ाकिरीन आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान करते हैं, ये असलन अगर देखिए, इस पे गौर कीजिए तो ये फ़ज़ाइल नहीं है, ये तो सिर्फ आले मोहम्मद का भी तारुफ हो रहा है। जैसे मैं अभी आया और मैं ज़ीशान भाई से पूछूं, ज़ीशान भाई ये साहब कौन? इन्होंने कहा डॉक्टर। ये साहब कौन? इन्होंने कहा प्रोफेसर। ये साहब कौन? इन्होंने कहा इंजीनियर। ये साहब कौन? इन्होंने कहा डीएम। ये क्या है? का ये है तारुफ। वैसे ही ये आले मोहम्मद का तारुफ। ये कौन? कुल्ले ईमान, मर्द मैदान, शायान शान, वारिस कुरान, फातह खैबर, साक़ी कौसर, वारिस मिंबर, फातह बद्र हुनैन, मालिक कौनैन, वालिद हसनैन, शौहर बतूल, दामाद रसूल, बिन्ते असद के फूल, काबे की ज़ीनत, महराब की ज़ीनत, मस्जिद की ज़ीनत, मिंबर की ज़ीनत, सिदरतुल मुंतहा की ज़ीनत, अर्श अज़ीम की ज़ीनत, गोशे पैगंबर की ज़ीनत। ये तो तारुफ है। फज़ाइल तो पर्दे वाला आके बताएगा, वो बताएगा अली क्या है। इसलिए कि हम क्या जाने, हम क्या जाने, इसलिए कि हम क्या, हमारे बाप भी न थे तब इनको बनाया अल्लाह ने। हाँ, ये अपने ये वाले बाप नहीं, वो वाले तो सबके हैं। जनाबे आदम भी न थे तब अल्लाह ने बनाया इनको। और ये 5 हैं, कुछ नहीं है। कुछ की क्या बात है, लफ्ज़े कुछ नहीं है, यही 5 हैं। या ये हैं या वो है, बाकी कुछ नहीं, ये या वो। सुनिएगा, कोई बड़ा आने वाला होता है ना हमारी बस्ती में, तो बस्ती सजाई जाती है ना। अभी कोई सीएम पीएम आने वाला हो तो बस्ती सजाई जाती है, किसी चीज़ की कमी ना रहे। या कनातें लगी हैं, वो शामियाना है, वो पानी का एहतमाम है, सर्दी है तो हीटर है, गर्मी है तो एसी है, पूरा इंतज़ाम रहता है। अच्छा, इंतज़ाम सब हो गया, अब वो बड़ा आ गया? का नहीं, का फिर का उस बड़े से पहले कुछ बड़े और आते हैं। तो वो क्यों आते हैं? का वो इसलिए आते हैं ताकि लोगों के जहनों को आमादा कर सके कि वो आने वाला है। आने वाला, पता नहीं आप पहुंच रहे कि नहीं। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है ना। ये होता है ना, आपने देखा होगा। ये है हमारी औकात,
अब उसकी कुदरत मुलाहिजा कीजिए, उसको भेजना था 5 बड़ों को, तो उसने बस्ती नहीं सजाई, बस्तियों को सजाया। कर रहा है? उसने बस्तियां सजाना शुरू की, कायनात सजाना शुरू की। 5 को भेजना है ना बड़ों को, जिनसे बड़े कोई नहीं है। जितने भी इस दुनिया में बड़े हैं सब सदका हैं। हाँ, गौर कीजिएगा, इनसे बड़ा कोई नहीं, इन्हें बनाया है, इनको भेजना था। तब अल्लाह ने कायनात सजाना शुरू की। आसमान का शामियाना ताना, ज़मीन का फर्श बिछाया, कश्तियों को पानी पर रवा किया, दरियाओं में रवानी पैदा की, समंदर में वजदानी पैदा की, फूलों को महकाया, कलियों को चटकाया, डालियों को लचकाया, खारों को खटकाया, और कर रहे बादल में शोर पैदा किया, हवा में जोर पैदा किया, पहाड़ों को बनाया, ज़र्रात को बनाया, समंदर दरिया नहरें जारी की। और कर रहे ये कायनात सज रही है, कायनात सज गई। अब भेज दिया बड़ों को, कहा नहीं, कहा फिर कभी इन बड़ों से पहले कुछ बड़े और आएंगे जो लोगों के जहनों को आमादा करेंगे। तब अल्लाह ने भेजना शुरू किया, आदम आप चले जाइए, नूह आप चले जाइए, मूसा आप चले जाइए, इब्राहिम आप चले जाइए। जहन आमादा हो गए, कहा अब उनकी बारी है जिनके लिए सब कुछ बनाया है, अब वो आने वाले हैं। ए मोहम्मद अब आपकी बारी, ए अली अब आपकी बारी, ए फातिमा अब आपकी बारी। सुनिएगा, बस आखिरी मरहला है, गौर कीजिएगा। तो अल्लाह ने इन्हें बनाया पहले, भेजा बाद में। बनाया सबसे पहले, भेजा बाद में। जब कुछ न था तब इनको बनाया, और जब इनको बनाया फिर कायनात सजाना शुरू की। और कायनात सजाते हुए अल्लाह ने जब इनके सबसे बड़े खादिम जिब्रील को बनाया, कर रहे हैं? हाँ, देखिए मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूँ, आपकी सोच का नहीं। हाँ, अक्सर मसले इसी पे खड़े हो जाते हैं कि मिसाल के तौर पे बात हमने की है, रिजल्ट खुद निकाल लिया है ना, रिजल्ट खुद निकाल लिया। और निकालने के बाद फिर जाहिर है कि फिर रिजल्ट जो निकलेगा तो फिर अल्लाह ही खैर वाला होता है, वो रिज़ल्ट बड़ा ख़तरनाक होता है। और मैं अपना मिजाज बता दूं, मैं कोशिश ये करता हूं कि जितने एतराज़ लोगों के जहनों में आने वाले होते हैं वो मैं पहले ही करके खुद ही जवाब दे देता हूं। हाँ, मैं चाहता हूं मेरी आवाम एकदम सेफ रहे, कोई जहमत ना हो उसे किसी तरीके की, वो खुद ही करके दे देता हूँ। तो सुनिएगा, मैंने खादिम ऐसे ही नहीं कहा जिब्रील को, जिब्रील ने खुद कहा है कि जब 5 नूर देखे का ये कौन है, जब अल्लाह ने बताया तो कहा इनका खादिम बना दे। हाँ, बड़ों से जान पहचान जरूरी है, काम आएंगे। सुनिएगा, मुतवज्जे रहिएगा। तो एक मर्तबा जिब्रील की जब नजर पड़ी, इनके खादिम को बनाया, नजर पड़ी 5 पा का, परवरदिगार ये कौन जो मुझसे पहले का, पहले की क्या बात कर रहा, अगर ये ना होते तो तुझे बनाते ही कब। परवरदिगार ये इतनी अजमतों के मालिक हैं तो तारुफ करा दे ये लोग कौन है। सुनिएगा, चूँकि शोराए किराम भी तशरीफ़ फरमा है, मुझे बस एक लफ्ज़ का फ़ायदा उठाना है और उनसे दाद और दुआएं दोनों चाहता हूँ। सुनिएगा मेरे अजीज़ों, खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। एक लफ्ज़ का फ़ायदा उठाया ज़ीशान भाई, और कीजिएगा कि कौन है परवरदिगार का। जिब्रील जानना चाहता है, पहचानना चाहता है। हाँ परवरदिगार बता दे ये कौन है जो मुझसे पहले। कहा अनल महमूद हाजा मोहम्मद, अनल आला हाजा अली, अनल फातिर हाजा ही फातिमा, अनल मोहसिन हाजल हसन, अना कदीमुल एहसान हाजल हुसैन। अल्लाह ने तारुफ कराया कैसे, अना के ज़रिए, अना के ज़रिए। बार बार अल्लाह कह रहा अना 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 अना। ये अना आप लोग सुनिएगा, लाइएगा नहीं। हाँ, ये अना हमारे और आपके लिए नहीं है, ये अना या उसके लिए है या कूफे के मिंबर पर आने वाले के लिए है। अना अमीरुल मोमिनीन, अना यासूबुद्दीन, अना कायदुल मुअज्जली, अना हब्लुल्लाहिल मतीन। और कर रहे हैं
आखिरी मरला है। बस यही बात अर्ज करके रफ्ते मसाइब होंगे, गौर कीजिएगा। तो क्या इरशाद हुआ? अनल महमूद हाजा मोहम्मद, अनल आला हाजा अली, अनल फातिर हाजही फातिमा, अनल मोहसिन हाजल हसन, अना कदीमुल एहसान हाजल हुसैन। पूछा किसने? जिब्रील ने। बताया किसने? अल्लाह ने। तारुफ किसका? पंजतन का। जरिया क्या? अना। और कर रहे हैं भाई? जिब्रील ने पूछा कौन? अल्लाह ने तारुफ कराया। जरिया अना, अनल महमूद, अनल आला, अनल फातिर, अनल मोहसिन, अना कदीमुल एहसान। अना के जरिए अल्लाह ने जिब्रील के सामने पंजतन का तारुफ कराया। वही पंजतन एक दिन आ गए चादर के नीचे। वही पंजतन एक दिन चादर के नीचे आ गए। अब ना पूछने वाला बदला, न बताने वाला बदला, न पंजतन बदले। वही जिब्रील फिर कह रहा या रब्बे व मन तातल किसा, परवरदिगार चादर के नीचे कौन? तो अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं महमूद मोहम्मद, मैं आला ये अली, नहीं आवाज़ दी हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा। मैं कहूँगा ए परवरदिगार, जिब्रील ने वहाँ पूछा तो तूने कहा अनल महमूद, अनल आला, अनल फातिर, अनल मोहसिन, अना कदीमुल एहसान। यहाँ पूछा कौन? तो कह रहा हूँ फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा। ए परवरदिगार वहाँ पूछा तो तारुफ अना के जरिए, यहाँ पूछा तो तारुफ फातिमा के जरिए। ये तारुफ क्यों बदल दिया जब पूछने वाला वही है? आवाज आई अरे मैंने तारुफ थोड़ी बदला, मैंने तो अजमत फातिमा बताई है कि फातिमा सिर्फ रसूल की बेटी का नाम नहीं है, मेरी आना का नाम है। मेरी अना का नाम है, मेरी अना का नाम है। जिस पे आप नाज करते हैं वो और है, जिस पे खुदा नाज करे वो फातिमा। मेरी अना, अल्लाह अकबर, मेरी अना। बतूल है ना, सैयदा को समझे, जहरा को समझे, अजरा को समझे। नहीं, मैंने गलत कहा। समझे नहीं, माने। इनको समझ कौन पाएगा? और समझने की कोशिश भी ना कीजिएगा, इनको मानने की कोशिश कीजिए। अहले बैत को मानने की कोशिश कीजिए, समझने की नहीं। इसलिए कि इनको समझ कौन पाएगा? कोई समझ सकता है? नहीं, कोई नहीं समझ सकता। कभी आपने देखा है कूजे में समंदर आ जाता है? आ गया हो कभी? हो सकता है? नहीं हो सकता। कूजे में समंदर नहीं आ सकता। तो जब इतने से कूजे में समंदर नहीं आ सकता तो इतनी सी अक्ल में अहले बैत आ जाएंगे? नहीं आ सकते। तो समझने की कोशिश, मानने की कोशिश। मेरे अजीज़ों, ये अय्याम, ये दिन अज़ा के आखिरी दिन है। जितना रोना है रो ले, जितना मातम करना है करें। मैं और अर्ज़ करता, लेकिन मैं माजरत खा हूँ कि अभी एक मजलिस और पढ़ना है, लिहाजा और तबीयत भी नासाज है, आवाज़ भी साथ नहीं दे रही इसी तबीयत की वजह से। बहरहाल फिर भी ज़िक्र मौला हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ज़ाइल पा खुश हुए। और शिया की पहचान भी यही है कि इनकी खुशी में खुश हो जाता है, इनके गम में गमज़दा हो जाता है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, ये आखिरी दिन, मैंने कहा ना आखिरी दिन, कल का दिन और है। ये जो आप रौनक देख रहे हैं ना, कल के बाद ऐसा लगता है कि हमारे घर से ताज़िया नहीं गया है, कोई जनाजा गया है। वो सन्नाटा,
ایسا لگتا ہے خالی گھر میں رہنے والے نہیں رو رہے ہیں، در و دیوار رو رہے ہیں۔ اب یہ جو باقی ہے نا آج اور کل، اس میں خالی نہ روئیے گا، خالی گریہ نہ کیجیے گا، معافی بھی مانگیے گا۔ بی بی رونے میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ ہماری ذاکری اور ان عزاداروں کی حاضری میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ شہزادی آپ کو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا اثر ہے۔ بی بی جیسی مہمان نوازی کرنا چاہیے تو نہیں کر پائے۔ اللہ اکبر۔ خوب روئیے گا اور خوب ماتم کیجیے گا۔ یہ وہ دن ہے، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، یہ پہلی ربیع الاول سے 8 ربیع الاول تک جانتے ہیں ان میں کیا کیا ہو گیا؟ یہ پہلی سے لے کے 8 تک کیا کیا ہو گیا جانتے ہیں؟ اسی میں سیدہ کا گھر جلا دیا گیا، محسن کو مار ڈالا گیا، بی بی کی پسلیاں توڑ ڈالی گئی۔ ہاں، روایت کہتی ہے رسول کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تیسرے ہی دن امت دروازے پہ آ گئی تھی۔ سننا آزادہ ہو، چونکہ انہی دنوں میں قافلہ مدینہ پہنچا ہے، تو بس میں وہی عرض کر رہا ہوں، گفتگو تمام کر دوں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب قافلے کو رہائی ملی ہے تو ایک مرتبہ قافلہ رہائی کے بعد شام میں اہل بیت پیغمبر مجلس کرتے ہیں، مجلسیں ہونے کے بعد بی بی وہاں سے چلی کربلا آئی۔ اب کربلا آئیں تو منظر عزیزوں اگر آپ تصور کریں گے تو گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے، منظر عجیب ہے۔ جب بی بی کربلا آئی، آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب فاطمہ آتی تھی تو رسول احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، سنا ہے نا؟ تو ویسے ہی آقا حسین بھی کرتے تھے، جب زینب آتی تھی تو آقا حسین احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج جب زینب واپس آئی ہے چھوٹ کے تو اپنے کو ناکے سے گرایا، دنیوں کے بل چلتے ہوئے قبر سکینہ پہ آ کے کہتی ہیں، قبر حسین پہ آ کے کہتی ہیں زینب اے بھیا کیا آج احترام نہ کرو گے؟ اے بھیا کیا آج زینب کا احترام نہ کرو گے؟ زینب آ گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک قبر سے رخصت ہو رہا ہے قافلہ، ایک ایک قبر سے، سب پہ گریہ ہو رہا ہے۔ زینب حسین کی قبر پر گریہ کر رہی ہیں، بیویاں اپنے اپنے وارث کی قبر سے رخصت ہو رہی ہیں۔ جب سب کی قبر سے رخصت ہو چکے تو تاریخ کہتی ہے، ایک مرتبہ زینب کہتی ہیں اے بیٹا سجاد سب کی قبر سے رخصت ہو چکے ہیں، تم نے میرے غیرت دار بھائی عباس کی قبر کہاں ہے؟ عباس کی لحد کہاں ہے؟ لیجا تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ مولا عباس کی قبر پہ آئیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مولا عباس کی قبر بڑی چھوٹی ہے، سنا ہے نا؟ یہ بھی سنا ہوگا کہ مولا عباس تھے بڑے طویل القامت۔ آپ سننا یہ روایت، آواز دی کہ بھیا بیٹا مجھے اپنے بھائی کی قبر پر جانا ہے، غیرت دار کی قبر پہ جانا ہے۔ سید سجاد لے کے فرات کے کنارے آئے، ایک چھوٹی سی لحد کے قریب کھڑے ہو گئے، آواز دی پھوپھی اماں یہ ہے میرے چچا کی لحد۔ زینب دیکھتی ہے ایک مرتبہ، اب کبھی قبر عباس کو دیکھتی، کبھی سید سجاد کو، کبھی قبر عباس کو، کبھی سید سجاد کو۔ آواز دی بیٹا میرا بھائی تو بڑا طویل القامت تھا، یہ لحد اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ آواز دی پھوپھی اماں جب میں باعجاز لاشیں دفنانے آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ظالموں نے میرے چچا کے لاشیں پر اتنے گھوڑے دوڑائے کہ لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ میں نے ابا کا دامن بچھایا، چھوٹی سی قبر بنائی اور لاش عباس کو دفن کیا۔ اللہ اکبر۔ مصائب تصور کے،
अगर तसव्वुर करेंगे तो रोते हुए जाएंगे। इसलिए कि मसाइब बयान नहीं किए जाते हैं। मसाइब इंसान सोच सकता है, कितना मेरे दर्द हो रहा है ये बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इंसान सामने वाला सोच सकता है, तसव्वुर कर सकता है, दर्द बताया नहीं जाता है। वैसे ही मसाइब सिर्फ ये तो लफ्ज़ है ना, आप महसूस कर सकते हैं। अब सुनिएगा, सबसे जब रुखसत हो चुके तो काफिला चला मदीने की तरफ। अब जो सुनाना है वो सुन लीजिए। काफिला मदीने की तरफ चला, आया मदीने में। तारीख कहती है कि खैमा लगाया गया एक मंजिल पर और बशीर को बुलाया कि जाओ मदीने में ऐलान कर दो कि जो काफिला गया था 28 रजब को वो वापस आ गया, मगर लुट के आया है काफिला। अली अकबर नहीं आए, कासिम नहीं आए और न मोहम्मद नहीं आए। बस 2 से 3 मिनट मजलिस तमाम हो रही है। लेकिन बशीर से कहा देखो सब जगह ये ऐलान करना, लेकिन महल्ले बनी हाशिम में बस इतना कहना काफिला आ गया, ये न कहना लुट के आया है, वरना सुगरा मुलाकात से पहले ही मर जाएगी। सुनना मुलाकात से पहले ही मर जाएगी। लीजिए एक मरतबा बशीर ने सदाएं दी, जब महल्ले बनी हाशिम में आया तो बस इतना कह रहा जो काफिला गया था वो लुट के आ गया, जो काफिला गया था वो लुट के आ गया। नीचे सुगरा को पता चला, सुगरा 8 साल के सिन में असे के सहारे से चल रही है। तारीख कहती है कनीज़ों को बुलाया, आओ चलते हैं, काफिले वालों का इस्तकबाल करते हैं। तारीख कहती है सुगरा चली। अब तो देखा, क्या देखा है, खैमा लगा है और खैमे के बाहर कोई बैठा है। सुगरा एक मरतबा आगे बढ़ी और आगे बढ़ के आवाज़ देती रुक जाओ बस यहीं पर। सारी कनीज़ें रुक गई। एक कनीज़ से कहा जाओ और इससे कह दो अली की पोती आई है, थोड़ी देर के लिए रास्ते से हट जाए, हम इस खैमे में चले जाएं, फिर आन के बैठ जाए। क्या हुआ? कहा बीबी मैंने कह दिया, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं है। कहा जाओ कह दो हुसैन की बेटी आई है। क्या हुआ? कह दिया, मगर जाने के लिए तैयार नहीं है। सुगरा को जलाल आ गया, आवाज़ दी जाओ इससे कह दो अब्बास की भतीजी आई है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अब्बास की भतीजी आई है। क्या हुआ? सुगरा बीबी कह दिया, मगर वो जाने के लिए तैयार नहीं है। आवाज़ दी, क्या कहा? अब्बास की भतीजी। का तो उसने कुछ जवाब दिया? कहा हाँ बीबी। अब की उसने कलाम किया। कहा क्या कहा? कहा उसने कहा है कि मैं अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़े लेता हूँ, तुम अपनी शहजादी को खैमे में ले जाओ, मुझसे उठने के लिए ना कहो। मैंने पूछा क्यों? कहा इसलिए उठने के लिए ना कहो क्योंकि बड़े दिन बाद आज पहली मर्तबा अपनी मर्जी से बैठा हूँ, वरना जहाँ बैठता था जालिम ताजिया ने मार के उठा देते, जहाँ बैठता था जालिम दुर्रे मार के उठा देते थे। बड़े दिन बाद पहली मर्तबा अपनी मर्जी से यहाँ पे बैठा हूँ, मुझसे उठने के लिए ना कहो। एक मर्तबा उसने चेहरे को मोड़ा, सोरा कनीज़ों के झुरमुट मचली। तारीख कहती खैमे के अंदर आई। अब तो कयामत का मंजर है। जैसे ही खैमे के अंदर सुगरा आई, बीबी ज़ैनब पर नज़र पड़ी। बीबी ज़ैनब से सुगरा कहती है बीबी ये बताओ मेरी फूफी अम्मा ज़ैनब कहाँ है? जैसे ही ज़ैनब ने सुना, आवाज़ दी सुगरा अब ज़ैनब पे ये वक्त आ गया है कि तू भी नहीं पहचान रही है। आवाज़ दी फूफी अम्मा आपके बाल सफ़ेद हो गए, कमर झुक गई। का सुगरा तुझे क्या बताऊं क्या गुजरी है? अब एक एक को सुगरा पूछना शुरू करती है। खत्म हो गई मजलिस। आवाज़ दी फूफी अम्मा मेरा भाई अकबर कहाँ है? आवाज़ दी सुगरा, सीने पर नेज़ा मार दिया गया। फूफी अम्मा मेरा अब्बास कहाँ है? आवाज़ दी सुगरा, बाजू कलम हो गए। फूफी अम्मा और मोहम्मद गर्दनें कट गई। फूफी अम्मा कासिम लाशा पामाल हो गया। मेरा बाबा गले पर खंजर चला दिया गया। एक एक को सुगरा पूछती है। सबको पूछने के बाद बस 2 जुमले खत्म हो गए। 2 जुमले एक एक को पूछने के बाद सुगरा आगे बढ़ी। अब किसी को पूछा नहीं, आगे बढ़ी। कभी रबाब को देखती है, कभी उम्मे लैला को देखती है, कभी उम्मे फरमा को देखती है, कभी फिज़ा को देखती है। एक मरतबा ज़ैनब कहती है सुगरा किसे ढूंढ रही है? आवाज़ दी फूफी अम्मा सब मारे गए। तो मेरा नन्ना भाई असगर कहाँ है? मेरा असगर। आवाज़ दी सुगरा अली असगर भी मारा गया।
आवाज दी फूफी अम्मा कोई ना रहा तो मेरी बहन सकीना, आवाज दी सुगरा वो भी शाम में सो गई, आवाज दी फूफी अम्मा कोई ना रहा मेरा भाई सज्जाद कहाँ है, आवाज दी सुगरा अरे जिससे तुम पर्दा करके निकल आई हो वो तुम्हारा भाई सज्जाद। सुगरा आगे बढ़ी, चाहा कि भाई के गले में बाहें डाले, बस एक मर्तबा सैयद सज्जाद कहते हैं सुगरा आहिस्ता मेरा गला जख्मी है। फिर एक मर्तबा सज्जाद ने बहन को सीने से लगाया, ए सुगरा बाबा का पुरसा ले लो, ए सुगरा चचा का पुरसा ले लो, ए सुगरा भरे घर का पुरसा ले लो, सुगरा हमारा घर उजड़ गया, सुगरा तुम यतीम हो गए, सुगरा